اور شیعہ، یہ دو اہم نام اکثر ہم سنتے ہیں مسلمانوں میں، سنی شیعہ ہوتے بھائی. اور کئی لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ سنی اور شیعہ دنیا میں 50-50% ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ 50% شیعہ ہیں، 50% سنی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ساری دنیا میں 92% سنی ہیں، 8% شیعہ ہیں. ہمارے ملک ہندوستان میں لگ بھگ مسلمان 30 کروڑ ہیں، اس میں بمشکل 12 سے 13% شیعہ ہیں، باقی کے پورے سنی ہیں الحمدللہ. لیکن میڈیا نے اس طرح پریزنٹ کیا کہ گویا مسلمان آپس میں لڑکے دو بڑے گروپ بن گئے، سنی شیعہ 50-50%. بالکل نہیں ہے. سنی 92% ہے. ہندوستان میں سنی لگ بھگ 85 سے 87% مسلمان آبادی میں سنی رہتے ہیں ماشاءاللہ. یہ سنی کا لفظ کہاں سے آیا؟ تو ہمارے میڈ ان انڈیا ڈیفینیشن میں بہت سارے ڈیفینیشن ہے. میڈ ان انڈیا کا ایک ڈیفینیشن کیا ہے؟ سنی بولے تو ثابت ایمان والا. ہم نے کہاں سے نکال کے لایا اللہ کو معلوم. میرے ایک دوست ہیں نان مسلم، وہ بیچارے میرے کو بولے کہ عمران بھائی میرے کو معلوم، سنی بولے تو، روہت نام ہے ان کا، وہ بولے عمران بھائی سنی بولے تو ثابت ایمان والے کو بولتے ہیں. میں بولا وہ تو میرے کو نہیں معلوم بھائی، قرآن میں کہیں بھی نہیں آیا، حدیث میں کہیں بھی نہیں آیا. پھر سنی کس کو بولتے ہیں؟ تو میں ہمارے لوگوں کو سنی کا مطلب یہ معلوم ہے کہ مثبت ایمان والا. دوسرا ایک ڈیفینیشن ہے میڈ ان انڈیا، وہ کیا ہے پوچھو؟ سن کے ایمان لاتے بھائی، ہم سن کے ایمان لاتے انہیں سنی. ابے بہرا رہا تو کیا کرتا؟ ایمان نہیں لاتا. سن کے ایمان لائے تو سنی نہیں بولتے. ثابت ایمان والے کو بھی سنی نہیں بولتے. سنی کے پیچھے تاریخ ہے. ہوا یہ کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کی خلافت کے بعد بعض بے وقوف ان کے دور کے، بعض جاہل، بعض بدبخت ان کے دور کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر بولے کہ تم امیر المومنین نہیں، تم امیر الکافرین ہے. بولے نعوذ باللہ، تم کافروں کے امیر ہے. بولے یہ پہلا فرقہ پڑا مسلمانوں میں. فرقے کس میں ہے؟ اسلام میں ہے یا مسلمانوں میں ہے؟ اسلام میں کبھی فرقہ نہیں ہے، فرقے مسلمانوں میں ہے. اللہ کے نبی جو پیشن گوئی دیے میرے بعد 73 فرقے ہوں گے. پہلا فرقہ شروع ہوا اعلان کرتے ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. انہوں نے کہا اے علی تم امیر الکافرین ہے، امیر المومنین نہیں ہو سکتے تم. یہ فرقے کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم خوارج ہو. خوارج آپ لوگ کبھی اگر کوئی آڈیٹورینس وغیرہ پہ، یہ پتہ نہیں یہاں ہے کہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگ اکثر کا کوئی بھی، اچھا وہاں دکھ رہا ہے ایگزٹ بول کے شاید لکھا ہوا ہے. ایگزٹ کو اگر آپ عربی میں دیکھیں گے تو عربی میں کہتے ہیں خارج، خارج ہو جانا، باہر نکل جانا، خوارج. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فرقے کو کہا تم لوگ خوارج ہو، مطلب تم لوگ اسلام کے باہر چلے گئے ہو. تم لوگ وہ بات کر رہے ہو جو قرآن اور سنت سے ہٹ کر ہے. وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ امیر نعوذ باللہ من ذالک. یہ سب سے پہلا فرقہ پڑا خوارجیوں کا فرقہ. خوارج کے فرقے کے تحت 4 گروپ بنے. خوارج کے تحت 4 گروپ. عبادیہ ایک گروپ بنا. عبادیہ خوارج کا گروپ آج بھی عمان میں موجود ہے. عمان کی سلطنت عبادیہ گروپ ہے. اس کے علاوہ ازرقی، حرورہ اور فوزی، یہ 3 گروپ بنے خوارج میں. اور اس کے علاوہ یہ تینوں ایکسٹنکٹ، ایک بچ گیا عبادیہ. اس کے علاوہ اب ایک گروپ بنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو بولا کہ اے علی ابن طالب ہم آپ کے گروپ والے ہیں اور ان دونوں کے بھی خلاف ہیں. کن دونوں کے خلاف ہیں؟ ایک خوارجیوں کے بھی خلاف ہیں اور ایک معاویہ اور ان کے لوگوں کے بھی خلاف ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. یہ جو اپنے آپ کو بولے کہ اے علی ہم آپ کے ساتھ ہیں، خوارج کے بھی خلاف ہیں، معاویہ کے بھی خلاف ہیں، یہ اپنے آپ کو پکارنے لگے شیعہ آل علی. ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعہ ہیں. عربی میں شیعہ کا معنی، قرآن نے شیعہ کا لفظ 4 مقامات پر استعمال کیا ہے. قرآن میں شیعہ کا لفظ 4 مقامات پر آیا ہے. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 سورہ انعام. سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 69. سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 15. اور اسی طریقے سے جو چوتھا مقام قرآن میں سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 51. لیکن چاروں بھی مقامات پر شیعہ نیگیٹو میننگ میں قرآن میں یوز ہوا ہے.
शिया पॉजिटिव मीनिंग में कुरान में इस्तेमाल नहीं हुआ। सूरह अनाम सूरह नंबर 6 की आयत नंबर 59 में अल्लाह ने कहा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग अपने दीन के टुकड़े कर ले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनसे कोई भी ताल्लुक नहीं है, अल्लाह इनके दरमियान क़यामत में फैसला कर देगा। वहां पे शिया अल्लस्ता, शिया ग्रुप के मानों में आया है। सूरह मरियम की आयत नंबर 69 में मॉब के मानों में आया। मॉब मतलब एक बड़ा ग्रुप बन गया कोई जिस पे हमले करते हैं या फसाद करते हैं, इसको मॉब कहते हैं। शिया मॉब के माने में आया, कहीं भी पॉजिटिव सेंस में नहीं आया। शिया आने अली का आज शॉर्ट फॉर्म है शिया। अब जो लोग शिया बने, इनके अंदर ग्रुप्स निकले। शियाओं के 3 मेन ग्रुप बने। एक अपने आप को इतना अशरी शिया बोले, एक अपने आप को इस्माइली शिया बोले, एक अपने आप को जैदिया बोले। जो जैदिया फिरका बना शियाओं का, यह आज बाकी नहीं रहा। अब बच गए 2 ग्रुप, जो अपने आप को इतना अशरी बोले और जो अपने आप को इस्माइली बोले। इस्माइलियों के तहत जो ग्रुप बने, एक ग्रुप बना 7 इमामों पर ईमान लाने वालों का, और उनके नीचे आया खरामता कहकर। एक दूसरा ग्रुप बना इस्माइलियों के नीचे, ये फ्लो चार्ट है इसका, ये शियाओं का फ्लो चार्ट है। एक ग्रुप बना इस्माइली, उसके नीचे आए 7 वर्स कहकर, 7 इमामों को मानने वाले, उनके नीचे खरामता आए। दूसरा ग्रुप बना निजारी कहकर, और निजारी देखिए यहां पे है निजारी का ग्रुप। निजारी के ग्रुप के नीचे 2 लोग आए। कौन कौन आए निजारी के नीचे? खुज्जे और दुरूस, ये 2 उसके नीचे आए, खुज्जे शिया। और उसके बाद तीसरा ग्रुप बना मुस्ता अली का। मुस्ता अली के नीचे तैयबी आए, तैयबी के नीचे बोहरे आए, बोहरों में दाऊदी बोहरे, सुलेमानी बोहरे, जफन बोहरे, अलवी बोहरे, अलेवी बोहरे, हेबिता बोहरे, अतबाल मालिक बोहरे, और अब प्रोग्रेसिव बोहरे। ये पूरे एक ग्रुप बन के यहां पे आ गए। जो इतना अशरी शिया है, जो इतना अशरी शिया है, इतना अशरी का मतलब अरबी में किसको कहते हैं? इतना अशर कहते हैं 10 को, इतना अशर 12 को कहते हैं। 12 इमामों को मानने वाला जो ग्रुप है, ये दुनिया में जितने भी शिया हैं, पहले मुसलमानों में शिया कितने हैं? सिर्फ पूरी दुनिया के मुसलमानों में शिया कितने फीसद है? 8%। वो 8% को अगर काउंट करें तो उसमें से 12 इमामों को मानने वाले शिया 98% है लगभग, यानी कि मेजॉरिटी 12 इमामों को मानने वालों की है, बाकी में बाकी के छट गए। अब ये जो मेजॉरिटी शिया है इतना अशरी की, इनको जाफरी फिक वाले शिया कहते हैं। जाफरी फिक, इमाम जाफर जो अहले बैत से ताल्लुक रखते हैं, जाफरी फिक के जो शिया हैं, इनके अंदर फिर ग्रुप्स बने, अखबारी, उसूली और शेखी, ये 3 ग्रुप बने। फिर उसके नीचे 4 ग्रुप बने, अलेवी, अलवी, बेकतशी, अलहक। ये पूरे शियाओं के ग्रुप्स हो गए। जब ये लोग अपने आप को शियाने अली कहने लगे और ख्वारिज अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को क्या बोले? नऊज बिल्लाह अमीरुल काफिरीन बोले। बच गए कौन थे? अब देखो मुसलमानों में क्या हुआ? इख्तिलाफ हुआ। एक बोले हम अली के खिलाफ है रजी अल्लाह ताला अन्हु के, ये अमीरुल काफिरीन है बोले, ये ग्रुप बन गया, ख्वारिज हो गया। दूसरा बोला हम आपके साथ है, मुआविया के, आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के, और इन सबके खिलाफ है बोले। ये बन गए शिया, जिसका पूरा एक ग्रुप का नक्शा बन गया अब आपके सामने। तीसरे जो लोग थे, अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास किसी शख्स ने आकर कहा कि अबू हुरैरा, ये हदीसों में काफी झगड़े हैं, हमारे लिए ये कुरान काफी है। अबू हुरैरा ने जवाब दिया कि अगर तू सिर्फ कुरान को मानता है, अना अहलुल हदीस, मैं अहले हदीस हूं, मैं कुरान को हदीस की रोशनी में मानता हूं। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए, जाकर ख्वारिज बोले क्या इब्ने अब्बास, कुरान के होते हुए हमें हदीस की किसी सहाबी की जरूरत नहीं है। इब्ने अब्बास ने जवाब देकर कहा, अना अहलु सुन्ना वल जमा, मैं अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखता हूं, यानी मैं उन लोगों में से हूं जो कुरान को नबी की सुन्नतों के तहत मानते हैं और नबी की सुन्नतों को सहाबा के बड़ा ग्रुप जैसा समझा वैसा समझकर मानते हैं, अपनी मनमानी से नहीं मानते। मैं अहले सुन्नत वल जमात में से हूं। ये 2 अल्फाज कहां से है? अहले सुन्नत वल जमात और अहले हदीस समझ में आ गया? सहाबी ने उनके रद्द में कहा। किसके रद्द में? जो कहते थे हमारे लिए कुरान काफी है, हदीस नहीं चाहिए,
जो कहते थे हमारे लिए कुरान और बाज़ हदीसें ले लेंगे लेकिन सहाबा की अहमियत नहीं है, इनके जवाब में ये दो अल्फाज इस्तेमाल किए गए और कहा गया, जब उनको जवाब देने कहा गया ना अहलुल हदीस, बोले अबू हुरैरा, बोले कि कमबख्त तू सिर्फ कुरान कहता है, मैं तो अहले हदीस हूं, मैं कुरान को हदीस की रोशनी में मानूंगा। इब्ने अब्बास ने कहा है ना अहलुस सुन्ना वल जमा, कमबख्तो तुम कहते हो कि सुन्नत छोड़ दो, सहाबा को छोड़ दो, मैं तो सुन्नत को भी मानता हूं और सुन्नत को समझने सहाबा के इजमा को देखता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ द सहाबा सुन्नत अल्लाह के नबी की किस तरह समझते हैं, कुरान किस तरह, अहले सुन्ना वल जमा। तो अब अगर इन पूरे उसको समेट दूं आप लोगों की आसानी के लिए, इतने पूरे नाम आप लोग अगर याद नहीं रख सकते हैं तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, अब अपने सहूलत के लिए मुसलमानों के खाली प्लॉट के ऊपर दो घर बनाएंगे। बोला कितना घर बनाएंगे? एक घर का नाम रखेंगे सुन्नी का घर। किसका घर? सुन्नी शॉर्ट फॉर्म है उन लोगों के लिए जो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात के कहते हैं या अहलुल हदीस कहते हैं। जो मुसलमान कहता है मैं कुरान को नबी की हदीस और सहाबा की सोच और फिक्र के जरिए मानता हूं, ये पूरे ऐसे मुसलमानों को सुन्नी कहा जाता है। समझे नहीं समझे? कौन है सुन्नी? सुन के ईमान लाया तो नहीं, ईमान की खुद गवाही दे लिया तो नहीं, मैं कट्टर ईमान पे हूं बोल के कमबख्ते उतने कट्टर जाते जहन्नम के अंदर। सहाबा कभी दावा नहीं करे हम पक्के मुसलमान है बोल के, आज होलसेल में दावे करते अपन पक्के मुसलमान आए बोल के। सुन्नी वो मुसलमान को कहते हैं, मर्द और औरत को, जो कुरान को, इस्लाम को नबी की हदीस और सहाबा के तरीके से समझता है, ये सुन्नी। तो दो घर में से एक घर किसका है? सुन्नी का घर है। दूसरा घर नाम नहीं लेता, गैर सुन्नी का घर है। जो सुन्नी नहीं है वो गैर सुन्नी का घर है, जो सुन्नी है वो सुन्नी का घर है। अब घर के अंदर क्या रहता मालूम? खाली दीवारा बनाते, कमरे भी बनाते, कमरे बनाते ना। तो ये जो सुन्नी घर के अंदर के कमरे हैं, हर कमरे पे एक नाम लिखा हुआ है। एक कमरे का नाम है अहले हदीस, एक कमरे का नाम है अहले सुन्नत वल जमात, एक कमरे का नाम है तबलीगी जमात, एक कमरे का नाम है जमात इस्लामी, हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली। ये पूरे कमरों के नामा है। कौन से छत के नीचे? तब आइंदा से किसी इनमें से एक दूसरे को काफिर पुकारेंगे? ये पूरे हम सुन्नी हैं, एक घर के नीचे रहने वाले। जो इसमें से नहीं बैठता, जो अहले सुन्नत वल जमात में से नहीं है आज की, जो अहले हदीस में से नहीं है, जो तबलीगी जमात में से नहीं है, जो जमात इस्लामी में से नहीं है, जो हनफी, शाफई, मालिकी या हम्बली नहीं कहता अपने आप को, इनमें से अगर कोई हमको मिलता है तो हम उसको बाजू के घर में शिफ्ट कर देते। ये पूरे हमारे अपने भाई हैं और हम लोग जरा थोड़ा मियाँ भाया तेज तबियत के रहते, तब लड़ाइयां भी लड़ लेते कमरों में, बहुत लड़ते, हम खून खान कर लेते एक दूसरे को, बहुत खून निकाल लेते एक दूसरे का, उसको मारते, अंदर मुंह फोड़ देते, रोज झगड़ा करते। लेकिन अल्लाह की कसम है, अगर जिस दिन बाजू के घर वाला इसके एक कमरे पे भी नजर डाला, उसके घर को उजाड़ के फेंक देंगे इंशाअल्लाह। ये हमारी अपने भाइयों की लड़ाई है। कमबख्त अगर तू कभी हमको लड़ाने की कोशिश करेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। इस घर में रहने वाला आपस में लड़ सकता है, लेकिन इस घर के अंदर के कोई कमरे वाला अबू बकर की इज्जत निकालता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, कोई उमर इब्न खत्ताब की इज्जत निकालता, कोई उस्मान गनी या अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इज्जत में कोई कमी करता, कोई हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इज्जत में कोई कमी करता, कोई मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इज्जत में कोई कमी करता, किसी एक सहाबी की भी इज्जत में हम कभी नहीं करते। अगर कोई अंदर ठहर कर कहे कि मैं फलां सहाबी को नहीं मानता, फलां सहाबी को गाली दे, लात मार के बाजू के घर में डाल देंगे। और अगर बाजू का घर वाला हम पर नजर डाला, क्या करेंगे? अरे क्या की करो बोल रहे हैं भाई, बैठ के सुनो बोले तो सुनते भाई, अब करने का नहीं करते बोल रहे हैं। बाजू के घर वाला नजर डाला तो क्या करते हैं? कब्रिस्तान बना देते घर को।